نئے سال کے آغاز پر وزیر اعظم کا فلاحی ریاست کے خواب کی تعبیر کی جانب ایک اور بڑا قدم۔ پنجاب میں قومی صحت کارڈ کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ 3 کروڑ خاندان سالانہ 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی ہر خاندان کو صحت کارڈ دیں گے۔ 54% آبادی کو احساس راشن پروگرام کے تحت آٹا، گھی اور دالوں پر 30% رعایت، جبکہ کامیاب پاکستان پروگرام میں کمزور طبقے کے 20 لاکھ افراد کو بلا سود قرض دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے لاہور فیروز پور روڈ پر پناہ گاہ کا افتتاح کر دیا۔ جدید سہولیات سے مزین پناہ گاہ میں 100 بستر کی گنجائش، خواتین کے لیے رہائش کا علیحدہ انتظام، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی ترقی اور فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پناہ گاہ کے مکینوں کے محفوظ اور آرام دہ قیام کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں: وزیر اعظم عمران خان۔ نئے سال کے آغاز پر حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ LPG کی قیمت میں 6 روپے فی کلو، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 70 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 268 روپے کمی۔ گھریلو سلنڈر 2390 سے کم ہو کر 2321 اور کمرشل سلنڈر 9197 روپے سے کم ہو کر 8929 روپے ہو گیا۔ اپوزیشن بری طرح بکھر چکی۔ شہباز شریف کے پاس لندن یا جیل جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ زرداری اور نواز شریف نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ ان کے کرتوتوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے تو پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ فائنانس ایکٹ میں ترامیم کا بنیادی مقصد پاکستان میں ٹیکس کلچر کا فروغ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک اور میر علی میں آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار۔ میر علی میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پوری قوم اس جنگ میں متحد ہے۔ بزدل دشمن کا بہادر قوم سے مقابلہ ہے جو ہر مشکل میں ثابت قدم رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ 2 روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ کشمیریوں کی نسل کشی کے خلاف حریت تنظیموں نے کل مکمل ہڑتال کی کال دے دی۔ روس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ صدر پیوٹن کی ٹیلی فون پر امریکی ہم منصب جو بائیڈن کو وارننگ۔ یوکرین میں مداخلت کی صورت میں امریکہ اور اتحادی فوری طور پر رد عمل دیں گے۔ صدر بائیڈن 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کال میں دونوں رہنماؤں کا لب و لہجہ سخت اور معنی خیز تھا۔ سینئر امریکی اہلکار تلخ و شیریں یادیں لیے سال 2021 کا آخری سورج مغرب میں جا سویا۔ مختلف ملکوں میں نئے سال کا شاندار استقبال۔ نیوزی لینڈ کے سٹی ٹاور اور آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر برج پر شاندار آتش بازی، آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان میں 3 گھنٹے بعد نئے سال کا آغاز۔ 2000 ہلاکتیں، لاکھوں نئے کیسز۔ اومیکرون نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں 5,72,000، فرانس میں 2,06,000، برطانیہ میں 1,89,000 اور اسپین میں 1,61,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ایک اور سنگ میل عبور۔ 2021 کے اختتام پر ملک بھر میں 7 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل۔ وزیر اعظم کا ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی یقینی بنانے پر NCOC، وفاقی اور صوبائی انتظامیہ اور طبی ٹیموں کا شکریہ۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 515 کیسز رپورٹ، 6 افراد جاں بحق۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी को स्टेडियम की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। चेयरमैन की स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। साल 2021 के बेहतरीन खिलाड़ी का ताज किसके सर सजेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी नामजद खिलाड़ियों में शामिल। और नया साल मौसम कमाल। नए साल के पहले हफ्ते बादल जमकर बरसेंगे, पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने भीगे भीगे मौसम की नवीद सुना दी। 2 जनवरी बलोचिस्तान और 3 जनवरी से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं उरूज फातिमा। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नए साल के आगाज पर वज़ीर आज़म इमरान खान का फलाही रियासत के ख्वाब की ताबीर की जानिब एक और बड़ा कदम। वज़ीर आज़म ने पंजाब में भी नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया है। तफसीलात बताएंगी लाहौर से हुमा सदफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रहम और एहसास फलाही रियासत के बुनियादी जुज़ हैं। हम पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं जिसके लिए इसको बनाया गया। पंजाब में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर नहीं बल्कि रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ उस्मान बुज़दार आपको और डॉक्टर यास्मीन आपको और आपके सारी टीम को कि ये इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि आपने ये वो काम किया है कि ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वो वक्त बताएगा कि वो कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा जो आज आपने कदम उठाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दूर दराज इलाकों में मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम करना हुकूमत का विजन है। सेहत बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है। चाहते हैं कि किसी बीमार को इलाज की फ़िक्र ना हो। इसके साथ साथ कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए आसान कर्जा जात एहसास राशन के तहत 54% आबादी को सब्सिडी समेत कई मंसूबे अवाम को बावकार जिंदगी फराहम करने में मदद कर रहे हैं। सारे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुकेगा। पख्तूनख्वा में सारे घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अब बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिधर हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सबको हमने हर खानदान को हेल्थ कार्ड पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सेहत का शोबा हुकूमत की तरजीह है। सूबे में सेहत कार्ड का 400 से ज़ायद अरब रुपए का मंसूबा और नए अस्पतालों की तामीर इसके अक्कास हैं। इंशाअल्लाह मार्च तक पूरे पंजाब में 9 डिवीज़नों तक इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा और इससे पंजाब के 36 अजला, 3.5 करोड़ ख़ानदान और 11.5 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सेहत कार्ड के इस इनकलाबी मंसूबे से सूबे भर में प्राइवेट अस्पतालों का जाल बिछ जाएगा और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन और गरीबों की दिल की आवाज़ है, क्योंकि आज के बाद सुबह पंजाब में कोई फ़र्द माली मुश्किलात के बायस इलाज मुआवजे से महरूम नहीं रहेगा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, सेहत के शोबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इनकलाबी कदम। 1 जनवरी से लाहौर डिवीज़न और 20 जनवरी से रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम मुस्तकिल रिहायशी ख़ानदानों को कौमी सेहत कार्ड की सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिसका दायरेकार मार्च तक पूरे सूबे में फैला दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
صوبہ پنجاب کے 3 کروڑ خاندانوں کو نیا پاکستان صحت کارڈ دینے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، جس کے بعد صوبے کا ہر خاندان پینل پر موجود سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرا سکے گا۔ ہسپتال میں داخلے کے دوران نہ صرف ٹیسٹ، سرجریز اور ادویات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی، بلکہ ہسپتال سے ڈسچارج کے وقت تجویز کردہ ادویات اور واپسی کا کرایہ بھی دیا جائے گا۔ ڈلیوری کے لیے سیزیرین سیکشن ہوا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا کوئی گردے کی ڈائلسس ہو رہی ہے، کوئی گردے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، شوگر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جب آپ ہسپتال میں داخل ہوں گے تو یہ کارڈ اسی وقت فعال ہو جائے گا اور آپ کو اس کارڈ کے تحت علاج معالجے کا سارا بندوبست ہوگا، دوائی بھی ملے گی۔ مریضوں کے ساتھ ساتھ طب کے شعبے سے وابستہ سوشل ورکرز اور نجی ہسپتال بھی صحت کارڈ کو اچھا قدم سمجھتے ہیں، جس سے ملک بھر میں نجی ہسپتالوں کا جال بچھ جائے گا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اکراس دی بورڈ جرنلسٹوں کو کوئی سہولت ہیلتھ کی ملی ہو، جرنلسٹ بھی اب کہیں جا کے باعزت طریقے سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں گے۔ کتنی گورنمنٹس آئی ہیں، سب نے وعدے کیے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کر دکھایا ہے اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے، میں کہوں گا کہ غریب لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ جو ہے نا، جس کی اس ٹائم ہمیں ضرورت بھی ہے۔ غریب عوام کے لیے کیا آسرا ہے، جو ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو فری علاج کرا سکتے۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مجھے اس ہیلتھ کارڈ کی اس لیے ضرورت تھی کہ میری بیٹی ہے وہ بیمار رہتی ہے، اس کے ریڈ سیل نہیں بنتے۔ پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں اور خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے 85 لاکھ خاندان پہلے ہی صحت کارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور جنرل اسپتال کے سامنے فیروزپور روڈ پر پناہ گاہ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہم معاشرے کے پسماندہ طبقات کی ترقی اور فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا ماڈل معاشرے کے پسے ہوئے اور کمزور طبقات کا خیال رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پناہ گاہ کے مکینوں کے محفوظ اور آرام دہ قیام کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پناہ گاہ لاہور میں 80 مردوں اور 20 خواتین کے رہنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ پناہ گاہ تمام جدید شہری سہولیات سے آراستہ ہے، جن میں استقبالیہ، انتظار گاہ، نگرانی کا نظام، بہترین کچن، مردوں اور عورتوں کے لیے کھانے کی جگہ، فلٹر شدہ پانی، نماز ادا کرنے کے لیے مختص جگہ، صفائی، لانڈری اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی شامل ہے۔ احساس سینٹر، شٹل سروس، معذور افراد کے لیے سہولیات اور خواتین کے لیے علیحدہ منزل پناہ گاہ کی اہم خصوصیات ہیں۔ اور نئے سال کے آغاز پر حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ، اوگرا نے جنوری کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو کمی کر دی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 70 روپے جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 268 روپے کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی گھریلو سلنڈر 2390 سے کم کر کے 2321 اور کمرشل سلنڈر 9197 روپے سے کم ہو کر 8929 روپے ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ صحت کارڈ کے بعد حکومت نے نئے سال کے تحفے کے طور پر ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 6 روپے تک کمی کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس سال ملک کی 72% آبادی جو پائپ گیس سے محروم ہے اس کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ آئندہ سال میں توانائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے میں آئے گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب میں ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے اجلاس کو بتایا کہ پنجاب کا حالیہ ترقیاتی بجٹ تاریخی طور پر سب سے بڑا ہے، جس میں 740 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو پنجاب میں ذرائع مواصلات، تعلیم، سڑکوں کی تعمیر اور صحت کے شعبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر درکار بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے عوامی فلاح کے تمام منصوبوں پر درکار بجٹ کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ ان منصوبوں کو بروقت اور احسن طریقے سے مکمل کر کے مؤثر عوامی خدمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے عوامی فلاح کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق عوامی آگاہی کی مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سول انتظامیہ اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صوبے میں عام آدمی کو فوری اور آسان طریقے سے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے عوام کے جان و مال اور مفادات کے تحفظ کے لیے شرپسندوں، ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایات کیں۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में अरकान पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को हिदायत की कि वो आइंदा बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए आवाम से अपने रवाबित को बेहतर बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी और वज़ीर जंगलात सब्तैन खान ने लाहौर में मुलाकात की और उन्हें खेल और जंगलात के महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों महकमों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि वो खेलों के जरिए नौजवानों की तरक्की और शजरकारी और जंगलात की कटाई को रोककर मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन बुरी तरह बिखर चुकी है। शहबाज शरीफ के पास लंदन या जेल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जरदारी और नवाज शरीफ के करतूतों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वो गवर्नर हाउस में लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नवीद हयात। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फाइनेंस बिल पेश करने के मौके पर अपोजिशन की क़यादत असम्बली में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट नवाज शरीफ के केस का फैसला जल्द करे और इन्हें वतन वापस लाया जाए। नवाज शरीफ जो है वो खुद वापस आएंगे। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के फिर बिल में घुस गए हैं। और हम तो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर मूव करे और जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब जब फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, वो अकामे के ऊपर एक दुबई की कंपनी से पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा तनख्वाह ले रहा था। वो हमें बता रहा था कि मुल्क की जो सालमियत है उसको कैसे ख़तरा लाहक हो गया है और क्या हो गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी के लिए ये कर्जों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। 3 बरसों में हमने $32 अरब कर्जा वापस किया और आइंदा 2 सालों पर मजमूई तौर पर $55 अरब कर्जा वापस करना है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज पंजाब के शहरियों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर हो गई है। हर ख़ानदान है उसको 10 लाख रुपए की सहूलत जो है वो आज से पंजाब में लाहौर डिवीज़न को मिलेगी और 20 तक इंशाल्लाह ये तमाम डिवीज़न जो हैं पंजाब की ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। बदकिस्मती से इसमें अब सिर्फ सिंध का सूबा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी इसमें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और अब सिर्फ सिंध का सूबा है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फाइनेंस बिल पेश होने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आई है। आइंदा 3-4 माह में महंगाई में मजीद कमी होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का जो टारगेट मुकर्रर किया गया था वो पूरा होने जा रहा है, जिस पर NCOC को मुबारकबाद पेश करते हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्वार्टर्स पर कराची में इजलास हुआ। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के अर्बन रीजनरेशन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद शफाफ और मौसर तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर निचले और मुतवसत तबके की बुनियादी ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती से माजी में इस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों के लिए रियायती कर्जा स्कीम शुरू की है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान क्वार्टर्स कराची के काबिल अमल हल पर वज़ारत हाउसिंग और वफाकी काबीना को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के साथ यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कराची में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जाहिद सईद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को फ़ख्र है कि उसने अक़लियतों के मसाइल और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। सदर ममलकत को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 19,000 वफाकी मुलाजमीन मुख्तलिफ स्केल्स पर तैनात हैं। उन्होंने अक़लियती मुलाजमीन को अगले दर्जात में मज़ीद तरक्कियों के लिए तरबियत और तालीम फराहम करने पर जोर दिया। मुआवन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अब किसी को इलाज कराने के लिए लंदन नहीं जाना पड़ेगा। 31 मार्च तक पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवन खुसूसी ने कहा कि सेहत कार्ड से आवाम को 10 लाख रुपए तक इलाज मुआवजे की ऐसी मयारी सहूलियात हासिल होंगी जो अमरीका जैसे मुल्क में भी नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि 4 लाख की शॉल पहनने वाले किस मुंह से गरीब की फलाह की बात करते हैं। मेरी एक बहन है, मीडिया को देखती है नून लीग का, कल वो गुर्बत का एहतजाज कर रही थी, कलमकार वालों की शॉल पहन के 4 लाख रुपए की। वो पहले मरियम बाजी ने पहनी थी, मरियम सफदर साहबा ने, हमारी बहन ने, अब पता नहीं उन्होंने इन्हें दी है आगे, एज अ ऑफशोर कंपनी है, इन्होंने अपनी खरीदी है।
तो जो लोग लाखों रुपए की शॉलें पहनते हैं उनसे कोई पूछे आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती गुर्बत के खिलाफ एहतजाज? आपकी मचाई हुई गुर्बत को ही तो आज सामना कर रहे हैं। आज हम आपके तवज्जुह से ये हेल्थ कार्ड मरियम सफदर को भी भिजवा रहे हैं, उनके शौहर कैप्टन सफदर को भी भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी भिजवा रहे हैं, उनके उन तमाम मुलाजमीन 16 जिनके अकाउंटों के अंदर 16 अरब की जाली टीटियां लगी उनको भी भिजवा रहे हैं। आज हम ये हेल्थ कार्ड हमजा शहबाज को भिजवा रहे हैं। जितने लाहौर के पुलों के इस तरफ रहने वाले लोग हैं और पुलों के उस तरफ रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं हम। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने 2021 के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। हम अपने ट्वीट में लिखा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 250 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदी और तमाम सूबों में आवाम को मुफ्त फराहम की। वज़ीर आज़म ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी यकीनी बनाने पर NCOC, वफाकी और सूबाई इंतजामिया और तिब्बी टीमों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के अख्ताम तक 7 करोड़ लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया गया है। पूरे मुल्क में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद 77% मुकम्मल वैक्सीन के हवाले से सरे फहरिस्त है। तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी। मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ई हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,885 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 मुस्बत रिपोर्ट हुए, जबकि 6 मजीद अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 28,927 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 10,112 मरीज हैं। दूसरी जानिब NCOC ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का सामना है, जिसके खिलाफ वाहिद दिफा मुकम्मल वैक्सीनेशन है। आवाम से अपील की है कि वह अपनी वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन का एक और संग मील अबूर कर लिया गया है। 2021 के अख्ताम पर मुल्क भर बशमूल आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होना खुश आइंद अमर है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि NCOC ने वफाक, सूबों और इदारों के माबैन ताउन की बेहतरीन मिसाल कायम की है। चेयरमैन NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने साल 2021 की अहम कामयाबी के मुतालिक अपने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के इख्तिताम तक 7 करोड़ लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया गया है। मैं NCOC की अनथक मेहनत करने वाली टीम, वफाक और सूबों की इंतज़ामिया और सेहत की टीमों का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। इन तमाम लोगों की बेपनाह मेहनत से एक ऐसा हदफ हासिल हुआ है जिसको लोग नामुमकिन समझ रहे थे। वफाकी वजीर ने कहा कि वैक्सीन के हवाले से जब दुनिया शकूक व शुबहात का शिकार थी, पाकिस्तान एक मजबूत प्लान के तहत न सिर्फ वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी को यकीनी बनाया, बल्कि वैक्सीन स्टोरेज से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने में इसकी तरसील और फिर वैक्सीन लगाने का अमल बाखूबी सरअंजाम दिया। यही वजह है कि आलमी इदारों और ज़राए इब्लाग ने पाकिस्तान की कोविड के खिलाफ काविशों को सराहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली की तारीफ की गई है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ओमिक्रॉन ने दुनिया पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में हलाकतों में इजाफा हो गया। केसेस दोबारा लाखों में पहुंच गए हैं। अमेरिका में 5,72,000, फ्रांस में 2,06,000, बरतानिया में 1,89,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान इन ममालिक में 2,000 हलाकतें, जिनमें अमरीका में सबसे ज़्यादा 1,362 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए। WHO सरबराह ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वहीं डेल्टा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन जुड़वां खतरे हैं, जिनकी वजह से रिकॉर्ड सतह पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। नए वेरिएंट के बायस बेशतर ममालिक में समाजी पाबंदी और मास्क का पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि मास्क ना पहनने की खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा।
अलविदा 2021 खुशामदीद 2022 दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के शानदार इस्तकबाल के लिए तकरीबात जारी हैं। न्यूजीलैंड के सिटी टावर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रंगारंग आतिशबाजी से आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। पाकिस्तान में चंद घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात मनाई जा रही हैं और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए बड़ी गर्मजोशी के साथ तैयारियां मुकम्मल हैं और तमाम लोग नए साल को खुशामदीद कहने के लिए इस वक्त तैयार हैं। कराची से ज़िशान अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नए साल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर। कराची में किस तरह से सेलिब्रेशंस जारी हैं, ज़िशान हमें बताएंगे। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, कराची के लोग किस तरह से नए साल की खुशियां मना रहे हैं, नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं? जी, कराची में कोई भी मौका हो, खुशी का कोई त्यौहार हासिल जारी देते हैं। कराचाइज जो कराची वाले जो हैं वो हर रंग हर त्यौहार को जो है भरपूर जोश जज्बे के साथ बनाते हैं, जोश तरीके से बनाते हैं और नए साल की जब आमद होती है तो ये तैयारियां उरूज पे पहुंच जाती हैं। इस वक्त मैं कराची की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ जो 5 स्टार चौरंगी में मौजूद है और काफ़ी पुरानी फूड स्ट्रीट है, काफ़ी चौड़ी फूड स्ट्रीट है और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इस वक्त कराची में शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह ये है कि तमाम लोग जो है वो घरों से निकल आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी सेलिब्रेशन है। हालांकि कराची में इस मौसम ठंडा खुशगवार है। इस वक्त फैमिलीज़ और देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों की बड़ी लंबी कतारें मौजूद हैं। यहाँ पे दोस्त अहबाब अपने दोस्तों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा फायर वर्क्स का भी एहतमाम किया गया है कराची के मुख्तलिफ जगहों पे। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है यहाँ पर और हमने से जाना कि भाई किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, आप ये बताएंगे कराची आइश क्या उम्मीद रखते हैं, हम नए साल की आमद को किस तरह वेलकम करते हैं? सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि हम जो है वो नए साल की आमद में आने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मौसम भी अच्छा है कराची का और लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसको, ठीक है। ट्रैफिक की क्या सूरत है? हाल जाम है क्योंकि सब घर से बाहर निकला है। कराची के लोग तो आपको पता है कि बड़े दिल वाले लोग होते हैं, लोग हैं और बस यही है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि नया आने वाला साल जो है वो अच्छी सबके लिए अच्छा हो, कारोबारी हज़रात वगैरह के लिए सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल जी, सबकी यही दुआएं कि नया साल का सूरज जब तुलू हो तो सबके लिए बेहतरी, खुशहाली और अमन का पैगाम लेकर आए, सब कारोबार में तरक्की करे। क्योंकि गुजरता हुआ साल अपने साथ तमाम चीज़ें तो लेके आए, लेकिन अब नए साल के लिए लोग पुरुमीद हैं कि नए साल में कुछ बेहतरी आए और इसके अंदर हम मजीद काम कर सकें। यही सब लोग का जो जज्बा है। इसके अलावा कराची में इस वक्त सेलिब्रेशन जोर शोर से जारी हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा फायरवर्क्स का भी एहतमाम किया गया और रात 12 बजे काफ़ी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। ज़िशान अहमद, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और 2022 को खुशामदीद कहने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं और तकरीबात का आगाज किया गया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं आसिम नज़ीर। आसिम, बताएगा लाहौर के लोग जो हैं वो किस तरह से नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह और पाकिस्तान में भी जो शहरी हैं वो साल 2022 को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश हैं। साल 2021 के चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मैं भी मौजूद हूँ यहाँ लाहौर की सबसे मारूफ और जो रश वाली जगह है माल रोड। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं और जो सर्दी का मौसम है उसको एंजॉय करते हुए यहाँ सूप, कॉफ़ी और दीगर जो खाने हैं उनसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मंचले हैं उन्होंने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है साल 2022 को भरपूर तरीके से वेलकम करने के लिए। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने भी अपना प्लान मुकम्मल तैयार कर रखा है। जो लाहौर में हर किस्म की हल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और किसी भी किस्म की मनशियात और हर किस्म की वन व्हीलिंग और किसी भी किस्म की हल्लड़बाजी से बचाने के लिए शहरियों को और इनके जानो माल को महफूज रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने अपना प्लान मुकम्मल कर रखा है। और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी नौजवान को ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। नए साल की खुशियां मनानी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया लाहौर से आसिम, और आपने तमाम तर तफसीलात बताई कि जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आने वाले साल को। और नाज़रीन, खबरनामे में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएंगे कि अगवा बराए तावान के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे। लेकिन फिल वक्त टांग में दहशतगर्दों की मौजूदगी खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल को हलाक कर दिया। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके उसके
कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया। इस मौके पर फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में हवलदार मुनव्वर, सिपाही ज़काउल्लाह, सिपाही फरहान और सिपाही शिराज शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम इस जंग में मुत्तहिद है। बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। ताज़ा कार्रवाइयों में आज मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को श्रीनगर के इलाके 5 छोक में एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिससे गुज़श्ता 2 रोज से शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 9 हो गई। इससे कबल इस इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 3 एहलकार जख्मी हो गए थे। भारतीय फौजियों ने महासरे और तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाइयों के दौरान 3 नौजवानों को गुज़श्ता रोज जिला इस्लामाबाद के इलाके वेरीनाग में, जबकि दीगर 3 नौजवानों को बुध की शाम कुलगाम के इलाके मिरहामा में शहीद किया था। काबिज इंतजामिया ने लोगों को श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए डाउनटाउन के इलाके में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात करके सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी। मार्च की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने गुज़श्ता 1 साल से जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत न देने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए दी थी। आज मुसलसल 21वें हफ्ते भी लोगों को जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, तहरीक जम्मू कश्मीर बचाओ, डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी, इत्तेहाद इस्लामी और फलाही पार्टी ने कश्मीरी अवाम से जारी नस्लकुशी और भारतीय हुकूमत की दीगर साम्राज्य पॉलिसियों के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की है। और मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम और जाहिरियत के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों और नौजवानों की नस्ल कुशी कर रहा है। कश्मीरी कौम एक अहम मकसद के लिए कुर्बानियां दे रही है। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जारहियत और रियासती दहशतगर्दी का खात्मा करने में अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मीडिया इंफॉर्मेशन कमेटी की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों और भारतीय जुल्म तशद्दुद के हवाले से जारी करदा सालाना रिपोर्ट भी शाया की गई। और खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, अब सेहत सबके लिए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, अब सेहत सबके लिए। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन और वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी तेलदार अजनास की काश्त के फरोग के लिए अरबों रुपए के कौमी मंसूबा पर अमल दरामद जारी। इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर 20 एकड़ तक 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी फराहम की जा रही है। गैर रजिस्टर्ड काश्तकार रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक के दफ्तर से राब्ता करें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए दफ्तरी औकात के दौरान ज़राई हेल्पलाइन या प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौमी मंसूबा बराए फरोग तेलदार अजनास पंजाब के फोन नंबर पर कॉल करें। सूरजमुखी उगाएं, 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी पाएं। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, अब सेहत सबके लिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में रोजवेल्ट होटल के जिम्मे $142 मिलियन कर्ज की री रोलिंग मंजूरी दी गई।
کمیٹی نے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کے لیے 8 ارب کے اضافی فنڈز اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری بھی تھی۔ اجلاس میں انٹر بینک میں فارن ایکسچینج رکھنے والی کمپنیز کے لیے مراعات کا اعلان بھی کیا گیا۔ منصوبے میں ہاؤسنگ فائنانسنگ کمپنیز کی شمولیت کی منظوری دی گئی۔ ای سی سی نے نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ذیلی اداروں کو کارپوریٹ قوانین سے استثناء کی بھی منظوری دی۔ چیئرمین ایف پی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے کہا ہے کہ ضمنی مالیاتی بل 2021 معیشت کو دستاویزی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 90% کے قریب ٹیکس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے کہا کہ عام آدمی کے استعمال اور کھانے پینے سمیت دوسری مصنوعات پر ٹیکس استثناء ختم نہیں کیا گیا، صرف امیروں کی مراد ختم کی گئی ہیں۔ فوڈ آئٹمس کو ہم نے بالکل سیو کیا ہے، ویٹ فلور، ویٹ برین، رائس، ویجیٹیبلز، فروٹس، پلسز، فریش پولٹری، فش، میٹ جو کامن مین کے آئٹمس ہیں، ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک، شوگر کین، شوگر بیٹ جو بیسیکلی را مٹیریلز ہیں شوگر انڈسٹری کے، ایجوکیشنل بکس اور اسٹیشنری آئٹمس ور سیوڈ۔ Imported parts for computers and laptops, imported CKD kits for electric vehicles, imported plants and machinery for SCCs. Agriculture tractors جو 5% پہ ٹیکس ہوتے ہیں ان کو ہم نے بچایا، فرٹیلائزرز جو 2% پہ ٹیکس ہوتا ہے ان کو ہم نے پرزرو کیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ ادویات پر جی ایس ٹی نہیں ہے، ان کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ فارما سیکٹر ہم سیلز ٹیکس لیں گے جی امپورٹ سٹیج پہ جب را مٹیریل آئے گا۔ میڈیسنز کی سیل کو ہم 0 ریٹ کر دیں گے۔ ریڈکشن ان پرائسز آف میڈیسنز 15 سے 20% پرائسز جو ہیں اس کی مارکیٹ میں کم ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر محمد اشفاق نے کہا کہ $200 تک کے درآمدی موبائل فونز اور 1000 cc تک کی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کو بجا طور پر فیملی چینل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 2021 میں پی ٹی وی نیٹ ورک نے تیز رفتار ترقی کی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور ایچ ڈی سکرینز میں جدید ٹیکنالوجی کی تمام تر ضروریات اس قومی ادارے میں سمٹ آئیں۔ وزارت اطلاعات کی مؤثر منصوبہ بندی اور عوامی پسندیدگی کی وجہ سے پی ٹی وی نیٹ ورک ایک منافع بخش ادارہ بن گیا۔ صدف افضل اس بارے میں رپورٹ کریں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ قومی امنگوں پر پورا اترا ہے۔ پاکستان کا ترجمان چینل پی ٹی وی ملک میں دور دور تک بسنے والے لوگوں کو باخبر رکھنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ قومی ادارہ مصدقہ خبریں نشر کرنے کے حوالے سے اپنی شناخت برسوں سے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اطلاعات و نشریات کی قیادت میں مختصر عرصے میں پی ٹی وی منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو 2021 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز اور ایچ ڈی پر منتقل کیا گیا۔ اسی تناظر میں ورچوئل سیٹ کی ٹیکنالوجی اور ملک بھر میں ہمہ وقت لائیو کوریج کا اہتمام پی ٹی وی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اٹ ول گو اے لانگ وے پاکستان کے بیانیے کی مضبوطی کے لیے اور انشاءاللہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خبروں اور پروگرامنگ میں بہتری لائی گئی اور عمدہ کانٹینٹ پیش کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آنے والی تبدیلی ادارے میں تکنیکی بہتری کی عکاس ہے۔ پی ٹی وی نیٹ ورک کی تیز رفتار ترقی ملازمین اور انتظامیہ میں ہم آہنگی اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنا چینل کو ایچ ڈی کیا، اسکرین کو بہت خوبصورت بنایا۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی، ہم نے نئے نیوز روم بنائے ہیں، ہم نے نیا میڈیا ریسورس سینٹر بنایا ہے۔ پی ٹی وی کے سٹاف کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین کو ادارے میں آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع دیے جا رہے ہیں۔ جو پروفٹ ہے اس کے اندر بہت اہم رول جو ہے وہ ہماری اسٹرکچرڈ انٹرونشنز تھی۔ ان اسٹرکچرڈ انٹرونشنز میں ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی سپورٹ تھی، جس میں میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو فواز صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، فاروق صاحب ہیں، میڈم شاہیرہ ہیں اور ایم ڈی صاحب۔ ناظرین کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے مصدقہ خبروں کی روایت کو آگے بڑھایا گیا۔ پی ٹی وی کو بیسیکلی ایک وائبل نیوز آرگنائزیشن بنانا جو ہے یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اور یہی ٹاسک دیا تھا مجھے فواد چودھری صاحب نے اور
ایم ڈی صاحب نے. ود ان فیو منتھس جو ہے ہم بہت ساری چیزیں چینج کر پائے ہیں اور اب ہم مارکیٹ فورس کے طور پہ ایک نیوز آرگنائزیشن کے طور پہ ریکن بھی کیے جاتے ہیں. 2021 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے OIC سمیت مختلف اہم ترین قومی اور بین الاقوامی واقعات اور ایونٹس کی یادگار کوریج کا اعزاز حاصل کیا. پی ٹی وی سپورٹس نے کھیلوں کے مداحوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا. پی ٹی وی ہوم پر ایسے ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں جنہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے. پی ٹی وی ورلڈ کو پاکستان کا واحد انگریزی زبان کا چینل ہونے کا اعزاز حاصل ہے. خبروں کے شور اور بے لگام دوڑ میں پی ٹی وی نیوز آج بھی اپنا اعتبار اور وقار برقرار رکھے ہوئے ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے تمام چینلز نہ صرف ملک کا مثبت تاثر اجاگر کر رہے ہیں بلکہ ناظرین کو تفریح، معلومات اور حالات حاضرہ سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں انقلابی اقدامات کے ساتھ ساتھ جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تعارف نے ملک میں ریاستی میڈیا نیٹ ورک کو پچھلے 3 سالوں میں تبدیل کر دیا ہے، جو کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک اہم قدم ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا گیا ہے. تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے. قومی میڈیا کی تبدیلی کا سفر 2018 میں شروع ہوا جب وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آ کر وزارت اطلاعات و نشریات کو اپنے محکموں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام سونپا تاکہ ملک کے بیانیے کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے. ہماری گورنمنٹ اب پوری طرح ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر زور لگائے گی. وزارت اطلاعات نے انسانی حقوق کی وزارت کے ساتھ مشترکہ طور پر پروٹیکشن آف جرنلسٹس اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2020 کا مسودہ، جبکہ ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز نے فلم پالیسی کا مسودہ تیار کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا اور پی ٹی وی نیوز کی SD سے HD میں منتقلی کا منصوبہ مکمل ہوا. معیاری آڈیو اور ویڈیو مواد فراہم کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا گیا. پیمرا نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران 27 نئے لائسنس جاری کیے. PID کو ہم نے پیپر لیس کیا ہے. جتنے جو اشتہارات ہیں وہ تمام اشتہارات جو ہے وہ آن لائن جاتے ہیں. APP جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیجیٹل نیوز ایجنسی جو ہے وہ بنا دیا ہے. اسی طریقے سے منسٹری آف انفارمیشن کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ریاست کا جو نیریٹو ہے اس کو پھیلانے کے اندر ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. فلم انڈسٹری کی ترویج و ترقی، میڈیا کی ترقی، صحافیوں کو میرٹ کی بنیاد پر مالی امداد، وزارت اور منسلک محکموں کے لیے ای فائلنگ کا نظام، معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا یونیورسٹی کا قیام موجودہ حکومت کے ویژن کے کلیدی مقاصد کا حصہ ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملکی مجموعی GDP کا حجم بڑھ کر $315 ارب ہو گیا. رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح 5% ہونے کی توقع ہے. تفصیل رانا افتخار احمد سے. موجودہ حکومت نے کرونا وبا سے نمٹنے، کمزور طبقے کو ریلیف، زراعت، چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو امرات کے ساتھ شرح نمو میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے، جن کی بدولت پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں معیشت کی بحالی میں کامیاب رہا. اس وقت زر مبادلہ ذخائر $24 ارب 27 کروڑ کی سطح پر موجود ہیں. معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے اقدامات کے ساتھ حکومت گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے قرضے بھی واپس کر رہی ہے. 5 سال میں $55 ارب کے قرضے پاکستان نے واپس کرنے ہیں جو پرانے قرضے لیے ہوئے تھے. اور اس کا اگر میں موازنہ کروں پچھلے جو 5 سال تھے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے تھے 2013 سے 18، اس کے اندر جو ہے وہ اس سے آدھے قرضے واپس کیے گئے تھے. تو وہ جو قرضے پہلے بڑھتے چلے گئے اس کا بوجھ جو ہے وہ اب ادا کرنا پڑا. 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران زراعت 2.77%، صنعت 3.57% اور خدمات کے شعبے نے 4.43% کی شرح سے ترقی کی. رواں مالی سال اب تک برآمدات میں 27%، ترسیلات زر 10% اور محصولات میں 36.5% اضافہ ہوا ہے. رواں برس اہم فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. ہم نے معیشت کے اندر سخت پیدا کر دی. ایک سال میں فوڈ پرائسز پہ بہت کنٹرول کیا. گندم کی قیمت ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں
टमाटर, प्याज, आलू, दालें, चीनी जो है वो 90 रुपए से नीचे आ गई, जो 110 से 120 रुपए थी। ये जो सब्जियों के नाम लिए ये 40% नीचे आ गई हैं। इस साल आप कपास की फसल देख लें 20% ऊपर आ रही है। गन्ना जो है हमारा वो 1.25 साल की अगले हमारे पास चीनी आ गई है। गंदम के हमने पिछले साल इतने वाफिर स्टॉक जमा कर लिए हैं कि हमारे पास जून तक के स्टॉक है। कारों, ट्रैक्टर्स, सीमेंट, यूरिया और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त भी बढ़ गई है। रवां माली साल सनत, ज़राअत, तामीरात और खिदमात के शोबों में मजीद बेहतरी का इम्कान है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तवानाई का शुबा किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सनत का पहिया हो या घरेलू ज़रूरियात, इसके लिए बिजली, गैस और पेट्रोलियम की अहमियत एक मुसलमा हकीकत है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे राहिल अंसार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद तवानाई के शोबे को खुसूसी अहमियत दी और इसमें खातर खा कामयाबियां हासिल की। गुज़श्ता 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने IPPs के साथ माजी में किए गए महंगे तरीन बिजली के मुआहदों को असर नौ मुरतब किया। सिस्टम में बिजली शामिल करने के लिए नया मॉडल मुतारफ कराया गया, जिसके तहत हुकूमत निजी कंपनियों से ओपन टेंडर के जरिए बिजली उस वक्त खरीदेगी जब उसे जरूरत होगी। चीन के इश्तराक से साहली इलाकों से 4000 मेगावाट बिजली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए HVDC ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम का भी आगाज किया गया। नए सिस्टम के जरिए लाइन लॉसेस कम होकर 50% रह जाएंगे। ये गवर्नमेंट जो है, जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट था, जो माजी की गवर्नमेंट्स ने पूरा नहीं किया था, उसको ब्रिज करिए। फिर जो उनके गलत मुआहदे थे उसको एड्रेस करिए। IPPs के मुआहदे को एड्रेस किया। LNG जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को जो है उन्होंने 13% ऑफ द ब्रांड किया, हमने 10% पे किया। 70% आवाम जो है वो 300 यूनिट से नीचे पाकिस्तान के इस्तेमाल करती है। उसको अब 4 रुपए यूनिट देते हैं। जो इन्होंने मुआहदा किया वो 18 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट के हिसाब से किया हुआ है। तवानाई का शोबा माजी की हुकूमतों की नाकस मनसूबाबंदी के बायस हमेशा मिसाइल का शिकार रहा। 2018 में मुल्क में सिर्फ 2 LNG टर्मिनल काम कर रहे थे, जिनकी इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ठोस इकदाम किए। 72% लोग जो है पाकिस्तान में, उनके घर में गैस की पाइपलाइन नहीं। 28% के लिए जो ये दावे करते हैं कि जी हमने LNG ले आए थे, तो वो ये तो बताएं कि उनके जो उस वक्त के रेट और जो उन्होंने वो भी $15 की थी, तो वो $3 वाले को कैसे जा सकती थी। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम वो मंगा के $3 वाले को दे दें, तो बाकी 72% का क्या कसूर है? उसको आप महंगा मिट्टी का तेल LPG दे रहे हैं। मुल्क में पानी और बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने डैमों की तामीर का बेड़ा उठाया। इस वक्त मुल्क के शुमाली हिस्सों में 3 डैम्स की तामीर का आगाज कर दिया गया है। डैमों की तामीर से साफ बिजली की वाफर पैदावार समेत ज़रई शोबे को भी फायदा पहुंचेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 9:30 की तकरीबात जारी हैं और पाकिस्तान के दीगर शहरों का अहवाल हमने आपको बताया। इस वक्त इस्लामाबाद में हमारी रिपोर्टर नमरा सुहेल मौजूद है, उनसे जानते हैं इस्लामाबाद के शहरी किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमरा, आगाह कीजिएगा। यादों का खजाना लिए साल 2021 हमारे पास से रुखसत हो रहा है। आज हमने साल 2021 का सूरज आखिरी बार जो है वो गुरूब होते देखा है, लेकिन अब हम साल 2022 का सूरज जो है वो नई उम्मीदों और नए जोश के साथ जो है वो तुलू होते देखेंगे। इस्लामाबाद के बासी जो है वो बहुत पुरजोश हैं कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लाइटिंग की गई है, मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है, फायरवर्क्स का भी एहतमाम किया गया है। रात 12 बजे यहाँ पे फायरवर्क्स भी होंगे, उसके लिए भी लोग बहुत पुरजोश हैं। फैमिलीज के साथ लोग आए हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं साल 2022 को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे आई हैं अपनी फैमिली के साथ, साल 2022 को में हम एंटर कर रहे हैं, कैसे देखती हैं? इंशाल्लाह ताला बहुत पुरुमीद हैं और बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला ये साल बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। पहले काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोरोना की वजह से घरों में बैठे रहते थे, आज ज़रा निकले और फायरवर्क्स का इंतज़ार है, इंशाल्लाह ताला इंजॉय करने के लिए आए हैं, तो बेटर होप्स। साल 2022 को कैसे देखते हैं अपने लिए? देखें जी, 2022 पाकिस्तान के लिए उम्मीद का साल है और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लोग पुरुमीद हैं और चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, चाहते हैं कि मुल्क खुशहाल हो, चाहते हैं कि मुल्क आगे जाए और अपनी अपनी काविशें डालना चाहते हैं। और आज की नाइट तो न्यू ईयर नाइट है, आज तो सेलिब्रेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नमरा, आपने आगाह किया किस तरह से इस्लामाबाद में सेलिब्रेशंस जारी हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मौसम का अहवाल शेयर करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, अब सेहत सबके लिए। मेरी
हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, अब सेहत सबके लिए। मौसम की बदलती रुतों में आपको बताएंगे महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। ताहम शुमाली बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी। और अब बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की।